Very good morning, students. Myself, Dr. U.K. Yadav, PhD Bio at JNV Biroli, Samastipur, Bihar. And we are in continuation with the chapter 8 from NCERT class 10 textbook, How do organisms reproduce? And in continuation, I would like to describe today regarding reproduction in human being. That means sexual reproduction in human being, and the beauty of sexual reproduction is formation of gamete, formation of sex cells. That means male and female gamete. Then there will be transfer of gamete, the transfer of male gamete into female reproductive tract, leading to fertilization. Then formation of zygote and implantation, further embryonic development, and that period is termed as gestation period. And after that, the child birth is there, parturition is there. So these are the common terms which is being used frequently in case of sexual reproduction. That means male, female, the organism which is leading to the formation of male gamete. That means the organism having the structure, the specialized structure meant for the production of male gamete, they are termed as male. Means the organism which is capable of producing sperms. On the other hand, the organism which is capable of producing female gamete, means egg or ova, they are termed as female. So in case of sexual reproduction, there is need of two individual, male and female, and they are producing male gamete and female gamete, sperms and ovum or egg, and then there is union of these gametes leading to the formation of zygote, and this zygote further develops into young one during embryonic development, and then there is childbirth, that is parturition. So in case of sexual reproduction, there is involvement of two individuals, male and female. Likewise, in case of ourselves, our parents means father and mother. That means father, he is male, mother, she is female. That means male, a man is male and woman is female. Male, an animal having male sex cells called sperms in its body, they are termed as male, and female means an animal having female sex cells called ova or egg in its body, they are called female. That means they are separate. Male and female are separate individuals, and they are capable of producing the male sex cells, sperms, and female sex cells, egg or ovum. And then what will happen? These two types of gametes are being produced by the individual male and female. That is the gametes. Gametes are the sex cell or the germ cell. They are termed as gametes. So the cells involved in sexual reproduction, they are termed as gametes, or they are termed as sex cells, or they may be termed as germ cells. They are gametes, or they may be simply termed as sex cells or germ cells. And it is of two types, obviously, male gamete and female gamete. Male gamete and female gamete. So male gametes are generally smaller in size, around lesser than 100 or 1000 times smaller than that of the female gamete, because it is having basically the nucleus and a long tail for its movement, for its motility. But in case of female, it is having a stored food. Yolk is there, stored food is there, and therefore its size is larger, and due to being larger, they are static, or sperm is smaller and having tail for its motility. Having mitochondria is there in their body, in the sperm, mitochondria is there for providing energy for their movement. And both the gametes, both the sex cells, they are haploid. That means they are being produced by the result of meiosis, by the result of reductional division.
and as a result of reductional division they will have only one set of chromosome, means both are haploid, that means both are n, having n number of chromosomes, and after union, after fertilization, there will be formation of zygote, and that zygote will have 2n, that means the number of chromosome restores in the process of fertilization. Fertilization is the fusion of male gamete with that of the female gamete to produce zygote in case of sexual reproduction. Sexual reproduction के केस में मेल गैमेट का, स्पर्म का फीमेल गैमेट से, एक या ओवम से यूनियन, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन। और इसके फलस्वरूप एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो जो भी गैमेट है हमारे, दे आर हैप्लॉइड, एंड एज ए रिजल्ट दोनों हैप्लॉइड मिलेंगे तो n प्लस n 2n हो जाएंगे, और वो क्या हो जाएंगे, डिप्लॉइड हो जाएंगे। So the fusion of male gamete with a female gamete to form a zygote in case of sexual reproduction is called fertilization, or the fusion of a sperm with an ovum or egg to form a zygote is called fertilization. Ovum or egg, ovum singular at a time, जो फर्टिलाइजेशन होती है एक एग का एक स्पर्म से, यदि मल्टीपल ओव्यूलेशन होंगे तो क्या होंगे, एग की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी, प्लूरल में क्या बोलेंगे, एग्स, और ये प्लूरल क्या हो जाएंगे, ओवीए, ओवा। तो कई बार देखेंगे बुक में लिखा रहता है ओवम और कई बार ओवा लिखा रहता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, प्लूरल में ये क्या हो जाएंगे, ओवा। In singular it is ovum, in plural it is ova. Now the zygote, the life starts from zygote. Now zygote is the new generation, the next generation. So fertilized ovum or fertilized egg is called zygote, and this zygote becomes 2n. This is 2n. That means it is diploid. ये क्या हो जाते हैं, डिप्लॉयड हो जाते हैं, 2n हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल फॉर व्हिच स्पर्म इज डिस्चार्ज्ड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, ड्यूरिंग मेटिंग, ड्यूरिंग कॉपुलेशन। क्या होंगे, मेल गैमेट की प्रोडक्शन मेल के केस में हो रहा है, ह्यूमन बीइंग के केस में टेस्टिस में हो रहा है, और फीमेल गैमेट ओवा की प्रोडक्शन, एक का मैचुरेशन कहाँ हो रहा है, ओवरी में हो रहा है। फिर फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बच्चे का डेवलपमेंट कहाँ होना है, फीमेल में होना है, फीमेल के यूटेरस में होना है। तो क्या होना होगा, स्पर्म की एंट्री होनी है, स्पर्म को पहुंचना है कहाँ, इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एंड फॉर दैट देयर इज कॉपुलेटरी ऑर्गन, इन केस ऑफ मेल इट इज पीनस, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट the male gamete is being transferred into the female reproductive tract. That means the fertilization takes place inside the body, and it is termed as internal fertilization. That means there may be external fertilization in case of fishes. In case of amphibians, they are showing sexual reproduction, gametes are being produced, but their further development takes place outside the body, in their immediate environment, in water, and so the fertilization takes place outside the body. External medium में fertilization होगी, इसको हम बोलेंगे external fertilization in case of fishes, in case of amphibians. Internal fertilization in case of birds, in case of reptiles, in case of mammals, they are showing internal fertilization, and there is transfer of male gamete into the female reproductive tract, and during the act of copulation or mating or sexual act, and for that there is copulatory organ which facilitates the transfer of male gamete into the female reproductive tract, और इसको हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। कई बार देखते होंगे, खास करके जो वेटनरी के प्रैक्टिशनर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, सीमेन फ्रोजन फॉर्म में लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रखा जाता है, किसको, स्पर्म्स को, स्पर्म्स ऑफ बुल, और फिर उसको क्या कराते हैं,
आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराते हैं काउ को, बफेलो को, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो वहां क्या होंगे, जो डिजायर्ड क्वालिटी के स्पर्म है उससे हम लोग फर्टिलाइजेशन कराएंगे, तो क्या होंगे, डिजायर्ड क्वालिटी के ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन होंगे, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन and formation of zygote, and after formation of zygote fertilization takes place in fallopian tube. This is the important question, that where fertilization takes place in case of human being. So in case of human being, fertilization takes place in fallopian tube, and after that the zygote travels into the uterus, और फिर यूटेरस में क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, इम्बेडिंग होगी, सेटलमेंट होगा किसका, एम्ब्रियो की, और फिर वो एम्ब्रियो का क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा, जो कहेंगे उसको हम क्या, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। जब इम्बेडिंग हो जाएगी, जब जाइगोट इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो सेटलमेंट हो जाएगा, ऐसा कहा, इन द वॉल ऑफ यूटेरस, एंडोमेट्रियम में, ये क्या हो जाएंगे, सेटल कर जाएंगे, उसमें इनसाइड पेनिट्रेट करेंगे, वहां उसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी, और वहां से स्टार्ट हो जाएगा क्या, जेस्टेशन। तो जो कंप्लीट पीरियड है दैट इज जेस्टेशन पीरियड, एंड इट इज 280 डेज इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। 280 दिन का प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश हो जाएगी, प्रेगनेंसी पीरियड होगा, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड, द फुल्ली डेवलप्ड चाइल्ड विल कम आउट ऑफ द मदर्स बॉडी थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और उसको हम क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन। उसे हम बोलेंगे पार्चुरेशन मींस चाइल्ड बर्थ। जब फुल्ली डेवलप्ड चाइल्ड, फुल्ली ग्रोन चाइल्ड क्या होंगे, मदर के बॉडी से बाहर आएंगे, उसको हम बोलेंगे पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, और इट इज चाइल्ड बर्थ। और ये चाइल्ड बर्थ को फैसिलिटेट करेंगे कौन, सर्विक्स एंड वेजाइना, और इसीलिए इस दोनों को मिला करके कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं बर्थ कैनाल। तो ये जो चाइल्ड बर्थ फैसिलिटेट होती है, इट इज बीइंग फैसिलिटेटेड बाय द बर्थ कैनाल, फैसिलिटेटेड बाय birth canal, and this birth canal, it is combinedly cervix and vagina, cervix plus vagina, इसे हम लोग कहेंगे birth canal because it facilitates the child birth, child birth को ये facilitate करता है। So this is all about the common terms which is being used in case of sexual reproduction, in case of reproduction in human being। अब हम लोग चर्चा करेंगे आगे कि ह्यूमन बीइंग में जो रिप्रोडक्शन होती है, तो क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। पढ़े होंगे हिंदी में आप लोग कि बाल्यावस्था है ना, उसके बाद क्या होता है, शैशवावस्था, यौवनावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो क्या होंगे, जो बाल्यकाल है, चाइल्डहुड है, तो चाइल्डहुड के बाद क्या होंगे, ग्रेजुअली ग्रोथ होगी। तो पहले क्या होंगे, जनरल ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, हाइट इंक्रीज होगी, वेट इंक्रीज होगा, ओवरऑल जनरल डेवलपमेंट होगी बॉडी की। तो ये चाइल्डहुड में होंगे। कई चीज़ें, कई स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो बर्थ के टाइम में नहीं होता। अब जैसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो बच्चों में दांत नहीं होता, तो क्या होते हैं, इनमें दांत आते हैं, जिसको बोलते हैं बेबी सेट या मिल्क सेट, और फिर वो झड़ जाते हैं और फिर परमानेंट सेट आते हैं। तो ये क्या है, जनरल डेवलपमेंट है बॉडी का। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है कि ये ग्रोथ रुक जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, और जो एनर्जी है दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट में ये एनर्जी कंज्यूम हो जाते हैं, और तब ग्रेजुअली क्या होता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है। और ये जो सेक्सुअल मैच्योरिटी के आने का टाइम है, इसको हम लोग बोलते हैं एडोलसेंट। और जो प्रोसेस है वो क्या है, अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, इसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी में क्या होंगे, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी द चाइल्ड
means the boy or girls become sexually active, sexually mature. That means now they are capable of producing the gametes. यानी कि 13-14 साल की अवस्था में लड़कों में सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है और 10 से 12 वर्ष की अवस्था में लड़कियों में सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी, है ना, एडोलेसेंस। और इस अवस्था में क्या होंगे, वो सारी चीजें जो पहले नहीं थी, जो फीलिंग, जो बिहेव पहले नहीं था, अब वो आ जाते हैं, या बहुत सी चीजों में परिवर्तन होता है। और ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, और जिसके आधार पे हम लोग कंक्लूड करते हैं कि नाउ द चाइल्ड, नाउ द बॉय और गर्ल हैव बिकम सेक्सुअली मैच्योर। द टर्म प्यूबर्टी डिफाइंस, क्लेरिफाइज द सेक्सुअल मैच्योरिटी इन चाइल्डहुड। जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद बच्चों में एक जनरल डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है। और छोटे बच्चों में जब ये 4 साल 5 साल 7 साल के हैं तो ये कहना बड़ी मुश्किल हो जाता है वेदर ही और सी। कई बार ऐसा होता है, इमेजिन कीजिए कि लड़की है, किसी के पास लड़की है, छोटी सी लड़की है, बच्ची है, 5 साल 6 साल की है, उसके बाल को छोटा कर दिया जाता है, लड़कों की तरह शर्ट पैंट पहना दिया जाता है, और फिर कहीं से साथ लेकर के जाइए, जो लोग नहीं जानते हैं कि वेदर ही और सी, तो वो क्या कहेंगे, कितना प्यारा बेटा है। नहीं, वो लड़का की तरह दिखाई देता है, और आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। कई बार ऐसी घटनाएं होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का ग्रोथ नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगी, तब तक ये कहना कि वेदर ही और सी, इट इज वेरी डिफिकल्ट। और बच्चे आपस में उनका कोई फीलिंग नहीं होता है, ही और सी वाली कोई फीलिंग नहीं होती। बड़े प्यार से छोटे बच्चे आपस में एक साथ खेलते हैं, और यदि एक साथ 4-5 बच्चे खेल रहे हैं या 10 बच्चे खेल रहे हैं, हो सकता है 4 बच्चे लड़के हो, 6 बच्चे लड़कियां हो, 6 बच्चियां हो, और यदि वो आपस में खेल रहे हैं, इमेजिन कीजिए कि किसी कमरे में बच्चे खेल रहे हैं, सभी बच्चे 7-8 साल के हैं, 6-7 साल के हैं, इसी एज ग्रुप के हैं, सभी एक साथ खेल रहे हैं, तो पहली बात कि उनमें किसी भी तरह का जेंडर की फीलिंग नहीं होगी कि वेदर ही और सी। आपस में खूब मारपीट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा है या बच्ची, नो प्रॉब्लम, आपस में खूब मारपीट करते हैं, सारा गेम्स एक साथ खेलते हैं। और यदि आप बाहर से आवाज सुने तो आपस में लोग बात करेंगे, तो आपको डिस्टिंग्विश नहीं होगा कि इसमें लड़कियां भी है या लड़के भी हैं, क्योंकि सबकी आवाज एक जैसी होती है। जो बिहेवियर है ऑलमोस्ट बच्चों का कॉमन होता है, क्योंकि उनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं आई है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का ग्रोथ नहीं हुआ। तो कई बार देखेंगे कि जब ये बच्चे छोटे होते हैं, तो मान के चलिए एक जगह किसी कॉलोनी में, किसी कैंपस में ये बच्चे रह रहे हैं, तो जब बच्चे छोटे हैं, 4 साल 5 साल 6 साल, बच्चों में इंटीमेसी होती है, दोस्ती होती है, लेकिन धीरे धीरे जब इनका एज ग्रो करता है, जब ये 10 साल 12 साल की अवस्था में आते हैं, तब दोनों में कहीं ना कहीं एक जेंडर के प्रति सेंसिटाइजेशन होता है, और फिर लड़कियों को लगता है कि अब हमें लड़कों के साथ नहीं खेलना चाहिए, या फिर कई बार लड़कों का कुछ ऐसा बिहेवियर होता है जिससे लड़कियां उससे अलग हो जाती है, या फिर कहती है कि नहीं, अब तुम लड़कों के साथ खेलो, हम लोग लड़कियों के साथ खेलेंगे, या हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, या तुम हमारे साथ नहीं खेलो। क्योंकि उनमें इस तरह का डेवलपमेंट हो जाता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, उसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, फीलिंग आ जाती है, और फिर एक अट्रैक्शन भी होता है, मेल का टुवर्ड्स फीमेल, फीमेल का टुवर्ड्स मेल। नहीं, तो ये सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस मीन्स जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, डिफरेंट पार्ट्स का डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, तो ये सारी चीजें आ जाती है। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल लेवल पे जो उसकी सोच है वो अलग तरह की हो जाती है, साइकोलॉजिकल जो उसके फीलिंग्स हैं, सेंटिमेंट्स हैं, वो अलग तरह के हो जाते हैं। और ये एज जो एडोलेसेंट है, प्यूबर्टी का एज है, एज ऑफ एडोलेसेंस है, इसको हम बोलते हैं स्टॉर्मी एज। इस एज में बच्चे अपनी रिकॉग्निशन बनाना चाहते हैं, और ये एज क्या है, दिस इज द एज इन बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। बचपना और प्रौढ़ावस्था के बीच की जो अवस्था है, that is adolescence. The age at which the sex hormones begins to be produced and the boy and girl become sexually mature is called puberty. और ये सारा खेल किसका है? This is the game of hormone, the sex hormone. जो pituitary gland है, they are secreting follicle stimulating hormone. और उसके बाद हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो दो तरह से काम करते हैं, एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन बोथ, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और उसमें आते हैं टेस्टिस एंड ओवरीज,
साथ ही साथ पैनक्रियाज भी है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, तो वो काम कैसे कर रहा है, एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। जब पैनक्रियाज सिक्रीट करती है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, तब ये काम कैसे करता है, एज एंडोक्राइन ग्लैंड। उसी तरह से जो टेस्टिस है वो क्या करती है, स्पर्म बनाती है, स्पर्म रिलीज करती है। कैसे काम कर रहे हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह। ओवरी है, एग सेल बनाती है, रिलीज करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह। लेकिन टेस्टिस सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन ही रिस्पांसिबल है फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। ये सारा का सारा काम मेल में किसका है, टेस्टोस्टेरोन का। फीमेल में किसका काम है, फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। दीज आर द हार्मोन्स दैट इज meant for the development of secondary sexual characters, their maintenance and production of egg। तो ये सारा का सारा खेल किसका है, एंडोक्राइन ग्लैंड का काम है, ये हार्मोन का काम है। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो एज है स्लाइटली दोनों में क्या है, डिफरेंट है। इन केस ऑफ मेल इट इज 13 to 14 years, in case of female it is 10 to 12 years। That means girls are getting sexual maturity to some extent earlier। और इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, 18 years is the minimum required age for female and 21 years is the minimum required age, legal age for male for getting married। कई बार बच्चे एडोलेसेंट स्टेज में पता है स्टॉर्मी होते हैं, कई बार बच्चे भाग जाते हैं, लव के अफेयर के चक्कर में शादी कर लेते हैं। लेकिन यदि उनकी एज 18 साल और 21 साल नहीं है तो वो शादी वैलिड नहीं होती है। जैसे ही जाएंगे पेरेंट क्लेम करेंगे, आपके ऊपर एफआईआर होगा, पुलिस पकड़ के लाएगी, आधार कार्ड देखेगी, आपका एज जैसे ही 21 से कम है, 18 से कम है, आपको पुलिस आपकी इस शादी को वैध नहीं मानती है। दैट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड एज फॉर मैरिज। क्योंकि सेक्सुअल मैच्योरिटी हो गई, ठीक है, स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, ओवम का मैच्योरेशन स्टार्ट हो गया, लेकिन फिनेंशियली, सोशियली, फिजिकली कंप्लीट अभी रेडीनेस नहीं है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड बर्थ के लिए। इसीलिए क्या है कि एक मिनिमम एज है, उसके बाद ही क्या होंगे, चाइल्ड बर्थ के लिए हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकली हम लोग तैयार हो जाते हैं और तभी बच्चे पैदा होते हैं या करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्यूबर्टी आ गई, 13-14 साल हो गया तो चलो शादी कर देते हैं। पहले होता था, जैसे मूछदाढ़ी आ गई लड़कों में तो लोग मानते थे कि ये मैच्योर हो गया, अब इसकी शादी कर दो, मूछदाढ़ी हो गई, इसकी शादी कर दो। तो ये जो 13 से 14 साल है, 10 से 12 साल है, तो इसमें कहीं क्लियर कट कोई ऐसा टाइम नहीं है, बिकॉज इट इज ग्रेजुअल प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि 13 साल हो गया है, 14 साल हो गया, तो जिस दिन बर्थडे है 14वां, सो करके उठे अगले दिन मूछ दाढ़ी आ गई, आवाज भारी हो गई, मर्द बन गए। या लड़की है तो जैसे उठी, बर्थडे हो गया 10 साल या 11 साल या 12 साल वाला, अगले दिन उठी, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया, सुंदर दिखने लगी, गाल क्या हो गए, फूले फूले हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये क्या स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। क्या होता है, एक आध दाढ़ी आती है, फिर ग्रेजुअली संख्या बढ़ती जाती है, धीरे धीरे आवाज में क्रैकिंग होती है मेल के केस में। वैसे ही फीमेल में जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है तो ग्रेजुअल है। ये सारे प्रोसेस क्या है, दे आर द स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। ये क्या है, स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। और साथ ही साथ ये क्या होंगे, इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल। किसी में हो सकता है कि स्लाइटली अर्लियर हो जाए, किसी में स्लाइटली लेटर हो जाए, डिपेंड करेगा जेनेटिक पे, डिपेंड करेगा एनवायरनमेंट पे, डिपेंड करेगा डाइट पे, डिपेंड करेगा उसके हार्मोन के सिक्रीशन पे। हो सकता है कई बार डिलेड सिक्रीशन हार्मोन का, सेक्सुअल मैच्योरिटी डिले हो जाएगी। ठीक है, इन चाइल्डहुड जब बचपना होता है, चाइल्ड बर्थ के बाद क्या होती है, जनरल ग्रोथ होता है। जनरल ग्रोथ मीन इंक्रीज इन हाइट, वेट, रिप्लेसमेंट ऑफ बेबी सेट और मिल्क सेट ऑफ द टिप विद दैट ऑफ द परमानेंट सेट। तो ये सारी चेंजेस होती है, ग्रोथ, जनरल ग्रोथ होती है। लेकिन जब एज अटेंड करते हैं, ये एज प्यूबर्टी की एज आती है, अब उस समय क्या होता है कि जो जनरल ग्रोथ हो रहा था, जो जनरल डेवलपमेंट हो रहा था, वो टू सम एक्सटेंट
रुक गया, स्लो हो गया, और स्लो होने के बाद जो एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ लगाया जा रहा है? इन सेक्सुअल मैच्योरिटी। अब क्या हो रहा है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में वो एनर्जी खर्च किए जा रहे हैं। तो क्या होगा? सेक्सुअल मैच्योरिटी मींस सेक्सुअल मैच्योरिटी और प्यूबर्टी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ये एडोलेसेंस के टाइम में होता है। रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ जर्म सेल्स टेक्स प्लेस। ये स्टार्ट हो जाते हैं क्या? गैमेटोजेनेसिस मींस जैसे ही सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाएगी, सेक्सुअल मैच्योरिटी का मतलब क्या हो गया? ऑनसेट ऑफ गैमेटोजेनेसिस। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी मींस गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स। इसको हम लोग कर सकते हैं सिंपली गैमेटोजेनेसिस। गैमेट का बनना स्टार्ट हो जाता है। मींस इन केस ऑफ मेल स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की प्रोडक्शन। इन केस ऑफ फीमेल oogenesis, एग का मैच्योरेशन। कब? ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो क्या हो गया? जो प्यूबर्टी है ये कैसे पता चलेगा? सेक्सुअल मैच्योरिटी हो गई तो बताया कि जब बच्चे छोटे थे, खेल रहे थे, 8-10 साल के थे, कोई डिफरेंस नहीं था, है ना। लड़के को फ्रॉक पहना दीजिए, कितनी प्यारी लड़की है। लड़की को शर्ट पैंट पहना दीजिए, कितना प्यारा लड़का है। नहीं तो बाहर से देख करके ये नहीं कर सकते कि वेदर ही और सी, लेकिन जैसे ही कोई लड़की या लड़का अटेंड कर लेता है 15 इयर्स ऑफ एज, 16 इयर्स ऑफ एज, भले ही उसको किसी भी तरह से एक्सटर्नली हम लोग चेंज करना चाहें कि कोई लड़की है तो लड़का दिखे या लड़का है तो लड़की दिखे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल फेनोमेना है। और जब सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाती है दैट मीन्स देयर इज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। एक फिल्म है मेरा नाम जोकर, कभी मौका मिले देखिएगा, अच्छी फिल्म है, पुरानी फिल्म है। तो उसमें जो हीरोइन होती है तो चाइल्डहुड में माँ बाप से बिछड़ जाती है या फिर वो अकेली होती है ना, डेस्टिट्यूट चाइल्ड है, अकेले रह रही है, लेकिन धीरे धीरे वो ग्रो अप हो रही है और वो नायक के साथ जो छोटा मोटा खेल होता है मदारी का, मदारी नहीं मीन्स जादू का, रस्सी पे चढ़ना, खेलना, जंप करना, उछलना, इस तरह के। तो वो लड़की होती है और अपने आप को लड़का दिखने के लिए सामने में बड़े बड़े पैकेट बना के रखती है शर्ट में, और उसमें कागज या जरूरत का सामान रखती है और वो लड़का की तरह दिखती है। और उसके साथ जो रह रहे हैं नायक राज कपूर, वो उसको एज ए बॉय ही ट्रीट कर रहा है, शागिर्द। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जंप के क्रम में खरोंच लग जाती है और उसके शर्ट यहाँ से फट जाते हैं, और जैसे ही शर्ट फट जाते हैं तो एक्चुअली ही इज सी, वो बाहर से अपने आप को लड़का प्रोजेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो लड़की है। और जैसे ही शर्ट फटता है तो उसके ब्रेस्ट दिखाई दे जाते हैं, फिर नायक को पता चलता है कि ये लड़की है, उसे साड़ी पहनाते हैं, फिर एज ए गर्ल उसको ट्रीट किया जाता है। तो ये सीन देखेंगे, उसमें जैसे ही फट जाता है तो नायक देख करके अवाक रह जाते हैं, यदि जिसके साथ रह रहे थे या लड़की थी इसको हम लड़का ट्रीट कर रहे थे। काफ़ी अच्छी दोस्ती है, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, काफ़ी अच्छा कॉपरेशन है आपस में, म्यूचुअल, ठीक है। तो वहाँ क्या है, छिपाने से भी कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, वही वाली बात है कि जो रियलिटी है उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। मीन्स गर्ल इज गर्ल, बॉय इज बॉय, एंड आफ्टर गेटिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मास्क देम, उसको छिपा देना कि ये लड़का है, किसी लड़की को कह देना या किसी लड़की को लड़का बना देना या लड़का को लड़की बना देना, ये प्रिटेंड करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है और इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। इन ए नटसेल द प्यूबर्टी मे बी टर्म्ड एज द सिग्नल्स ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। ये क्या है? सिग्नल है किसके लिए? सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए। After puberty one has got sexual maturity, and after getting sexual maturity we can distinguish male from that of the female, यानी कि मेल और फीमेल अलग से ही देखकर हम loग पहचान जाएंगे कि this one is male, this one is female, और उसके लिए टर्म क्या दिया गया है? sexual dimorphism, sexual dimorphism, यानी कि अलग से ही देख करके हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेल को फीमेल से। एक्सटर्नल अपीयरेंस के आधार पे कह सकते हैं कि दिस वन इज मेल, दिस वन इज फीमेल।
अब आफ्टर गेटिंग मैच्योरिटी, लड़के हैं तो क्या होगी, मूछदारी होगी, लड़कियां हैं तो क्या होंगे, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, है ना। तो ये क्या होंगे, शो करेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी कि whether it is male or female you can say just by looking their external appearance, है ना। by sexual dimorphism we can decide by the physical appearance, we can decide by the physical appearance that whether the individual is male or female। ये हम लोग देख करके दूर से ही बाहर से कह सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। इवन आप देखेंगे कि कई बार चित्रकार छायाकार ऐसे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, मीन्स लाइन खींच देते हैं और लाइन या छाया को देख करके आपको पता चलेगा कि ये मेल है, ये फीमेल है। मेल मीन्स स्ट्रेट, फीमेल मीन्स कंटूर, जो बॉडी का कर्व है, कर्वेचर है, वो दोनों में अलग अलग हो जाती है, तो पता चल जाता है कि वेदर ही और सी। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल मैच्योरिटी, द प्यूबर्टी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, कुछ तो कॉमन होंगे मेल और फीमेल दोनों में, और कई कैरेक्टर्स हैं जो मेल में है, स्पेसिफाई करता है मेलनेस, और फीमेल में फीमेलनेस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक्स, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू दैट द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हैज रीच्ड more than 100 within very short span of time, and expect that will go high and high with the help of your cooperation. Thanks a lot.